Good morning and welcome back to the Direct Taxation online lecture. Today we are going to learn and understand a few MCQs, like how the questions are asked in taxation, especially when it comes to income from house property. And on this basis, we will be able to prepare for our further MCQs. If the government is approving the online examination, then MCQ pattern will be there, or any new pattern if introduced, then that will be there. And if the offline pattern is introduced and offline examinations are conducted, then our as usual normal traditional way of examination will be there. So uh, let us start with the MCQs on income from house property. Question number one is rental income from a property being building or land apportionment thereto, of which the taxpayer is dash is charged to tax under the head income from house property. The question is अगर कोई rental income है from a property, whether it is being a building or land, ठीक है, which the taxpayer is dash, and यहाँ पे dash के बाद comma होना चाहिए, ठीक है, is charged to tax under the head income from house property. So taxpayer is who? Owner, power of the attorney holder, subtenant, and holder in due course. The answer is A. Now, why the answer is A? We do have some justification because rental income from a property being building or land opportunity thereto of which the taxpayer is owner, right? And he is charged to tax under the head income from house property. So simple. अगर कोई owner है या उसका possession holder है, then that person will be charged. Once the owner name is there, so finally he is the taxpayer, right? Now what is the meaning of power of attorney holder? समझो मेरा एक प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी मैंने मेरे फ्रेंड को दिया और बोला कि ऑल द डिसीजंस वुड बी टेकन बाय सो एंड सो पर्सन बिकॉज आई एम आउट ऑफ कंट्री फॉर माय पर्सनल ऑफिशियल सोशल जो भी रीजंस है उसके रीजन की वजह से हम बाहर, सो दैट पर्सन हैज द पावर बाय लॉ, ठीक है, कि मिस्टर प्रेम ने मुझे अटॉर्नी या फिर एक पावर दी है, अथॉरिटी दी है कि ये प्रॉपर्टी का जो भी देखभाल है वो मैं करूँ. देन सब टेनेंट होल्डर्स इन ड्यू कोर्स. सब टेनेंट मतलब टेनेंट दिया है उसने और किसी और को रेंट पे दिया है, दैट इज सब टेनेंट. एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन द सेंस द पर्सन हु इज रिसाइडिंग और स्टेइंग इन दैट हाउस. Then second question is rental income received by a tenant from subletting is also charged to tax under the head income from house property. तो क्वेश्चन बोला है, स्टेटमेंट दिया है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स हमको बताना है. तो एक रेंटल इनकम है जहाँ पे टेनेंट ने सब लेट किया है, मतलब टेनेंट ने किसी और को रेंट पे दिया है. हमने किसको, एक को रेंट पे दिया है, इज आर टेनेंट, उसने किसी और को टेनेंट पे दिया है, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे जो टैक्स चार्ज होगा तो वो अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्ज होगा या नहीं होगा. सो आंसर इज नहीं, बिकॉज रेंटल इनकम जो ओनर के हाथ में आता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्ज होता है, लेकिन रेंटल इनकम अदर देन द ओनर आता है तो दैट विल बी चार्ज अंडर द डिफरेंट हेड, ठीक है. सो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा. और सेकेंडली जो रेंटल इनकम रिसीव किया जाता है टेनेंट से और सब लेटिंग के थ्रू वो अगर हमको मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम other sources माना जाता है, not as income from house property. So the statement given in the question is false and hence option B is the correct option. So true or false, option B is the correct answer because statement is correct. Then third question is, if an individual transfer his or her house property to his or her spouses, not being a transfer in connection with an agreement to live apart. एक इंडिविजुअल है जिन्होंने अपना घर उनके स्पाउस को ट्रांसफर किया है. स्पाउस इज नथिंग बट योर लाइफ पार्टनर, जिनको हम हस्बैंड बोलते हैं या फिर वाइफ बोलते हैं. सो नॉट बीइंग अ ट्रांसफर इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट और to his her minor child not being married daughter without adequate consultation, then the
dash will be deemed as the owner of the property. ठीक है, तो यहाँ पे कौन होगा, ट्रांसफर, ट्रांसफर 60% in transferring 40% transfer और 40% in transfer 60%. ये जो स्टेटमेंट है एज इट इज हमने थियरीज में पढ़ा था, जो हमारे लेक्चर्स हैं वो आप एक बार गो करो. So how we need to study is we need to read each and every line. कंसेप्ट समझ के आगे बढ़ना है, लेकिन वो कंसेप्ट में क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है, और वो क्वेश्चन के बेस पे हम कैसे आंसर दे सकते हैं. सो हियर द राइट आंसर इज ट्रांसफरर. ठीक है, बिकॉज एक कोई इंडिविजुअल है, उसने अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है किसी घर वालों को, वेदर शी इज अ लाइफ पार्टनर, स्पाउस, या फिर माइनर चाइल्ड. ठीक है, लेकिन एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन के बिना अगर वो ट्रांसफर एडिक्वेट कंसिडरेशन के बिना अगर वो ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफर डीम्ड होता है. Transferor will be the deemed owner of that particular property. समझो, फॉर एग्जाम्पल आपके पिताजी ने आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, whether you are a girl or boy, 18 plus है, that matters, gender doesn't matter in this example, right? Because लड़की हुई तो शादी करके बाहर जाने वाले, लड़का है तो शादी करके शायद अपना अलग नया घर सेट करेगा या फिर न्यूक्लियर फैमिली बनाएगा, डिपेंड्स. सो वो केस को साइड में रखते हुए सिर्फ ये सोचना है, लड़का हो या लड़की, पिताजी ने अपने घर के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके नाम पे कर दिए ना, बट देन टू यहाँ पे आपका कंसिडरेशन नहीं था, उन्होंने विलिंगली ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पे ट्रांसफरर जो ट्रांसफर करता है वो यहाँ पे डीम्ड ओनर होगा. ठीक है, then in case where letting out of building and letting out of other assets are inseparable, entire rent, that is composite rent, will be charged to tax under the head income from house property. So answer is false. Why? Because अगर कोई घर या बिल्डिंग आपने लेट आउट किया है, ठीक है, और वो कोई और एसेट जिसको कॉम्पोजिट एंड कॉम्पोजिट रेंट मिलता है, सो कोई भी ऐसा एक बिल्डिंग जहाँ पे इनसेपरेबल कोई एसेट है, वहाँ पे हम लोग को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि आपने पूरा इक्विप्ड थिएटर रेंट पे दिया है, ठीक है? क्या आएगा, कॉम्पोजिट रेंट चार्ज अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. लेकिन जो चार्ज होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो नहीं है. So in case where letting out of building and letting out of other assets are inseparable, एक बिल्डिंग को लेट आउट किया आपने, साथ ही साथ में ऐसा प्रॉपर्टी है उसको भी लेट आउट कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन वो दोनों सेपरेबल नहीं है, तो बिल्डिंग एंड उसके पीछे थिएटर, सो दैट विल बी चार्ज एज either income from business or gains or income from house property. सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. बाकी के एमसीक्यूज भी आप खुद से देख लीजिए, कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप तुरंत पूछिए, सॉल्व कीजिए क्वेरीज एंड डाउट्स. ठीक है, हार्डली देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन, सो वो जो भी थोड़े क्वेश्चंस है एक बार आप रीड एंड रिवाइज कर लीजिए. चलो, यहाँ पे अगर कोई डाउट है आपको कि सर एमसीक्यूज में से आंसर कैसे ढूंढना है, एंड अगर हमने नहीं पढ़ा है फिर भी हमको वो आंसर्स डिराइव करने का क्या टेक्निक है, अगर ऐसा कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, और एल्स डाउट नहीं है तो यू कैन जस्ट पिंग इन द चैट बॉक्स सेइंग नो डाउट सर.